for the enlightening opening remarks. I will now request Honorable Shri Vinay Dr. Sahasrabudhe to come on stage and share his vast experience of being not only in the government but also in service and other social sectors. He has written many books. I'll just give his bio. Okay, I would like to give, his achievements are vast, but I'll try to put it in a few brief points. As a president of Indian Council for Cultural Relations, ICCR, he has served as a president from 2018 to 2023, where he introduced several initiatives to promote Indian culture globally. We just talked about it, and I think that is the way to get into hearts of people. He was Member of Parliament, Rajya Sabha, represented Maharashtra from 2016 to 2022. He was the National Vice President of the Bharatiya Janata Party, served from 2014 to 2020. He was chairman of the Parliamentary Standing Committee, led the Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports. I think we have just seen, how Gukesh has just scored. All this groundwork was laid by all these committees and led by Dr. Vinay. And we are seeing the results not only in sports but many other areas. You can imagine how much effort it takes to build that whole infrastructure. I am really proud of this work which has been done, sir. He has authored and co-authored books. One is The Innovation Republic and also Beyond a Billion Ballots. These are very interesting books. Now that I have the full profile, I'm sure I'm going to read it through Amazon or hard copy, but I'm sure you should also. And okay. Oh wow, we did not include it, but maybe it's a new one. Congratulations, sir, on this one also. Very nice. I think these are insights which normally we don't get in our corporate or office world, but he's been connected to the ground as well. So he knows those, barikiyan, what we call, and that smell of that bazaar, which normally we should miss, but we should not. So now let's look at these books at least and, take some lessons from there. He was a Goodwill Mission leader and led a mission of Indian voluntary organizations to Afghanistan in 2002. And he's also vice chairman, as Sandeep had said, of Rambao Malgi Prabodhini, which is a research and training academy for elected representatives and social activists, which is very important because there was a time where people used to get into these fields on their own, goodwill, their passion, etc. But today in this age where communication, social media, news and everything is 24/7, 365, it is very essential that this core skill is developed with all these social entrepreneurs and elected representatives to behave in the right manner and to ensure that our country comes first. And I think I really, really appreciate this is very fantastic, initiative by sir. And on that, please give a round of applause and invite sir for his brief remark. Respected Kamlesh ji, one of the senior members of this particular community, Shri Paresh Mehta ji, Shri Sandeep Modi ji, and all the members of this Federation of Pharmaceutical and Allied Products Merchant Exporters, friends. सगळ्यात प्रथम मी आयोजकांना धन्यवाद देतो की त्यांनी माझ्यासारख्या एका कार्यकर्त्याला इथे बोलवून माझा सन्मान केला आणि आपल्याशी काही संवाद करण्याची मला संधी दिली. आय नो दी मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इज लार्जली इंग्लिश, बट even if we have global aspirations, we cannot forget about our local strengths. And therefore in Maharashtra we have to start in Marathi and also switch over to Hindi and English. Let me share a particular incident which I came across. It's an experience and how we have to first of all respect ourselves. Then only global community is going to respect you. And this starts with our languages as well. It is not for no reason that the National Education Policy 2020 emphasizes on education in our mother tongues. Because mother tongue is like our mother.
If we don't respect our motherland, and our mother tongue, I believe, why would the global community think, and how can we aspire to have Hindi as a globally recognized language even at the United Nations if we don't respect Hindi? मैं एक बार मॉस्को गया था, तो मॉस्को एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर वहाँ के विश्वविद्यालयों में बरसों से हिंदी पढ़ाई जाती है, सोवियत ज़माने से। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के अध्यक्ष के नाते हम इंडिक सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटीज़ के हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ हमेशा रूबरू होते हैं, संवाद करते हैं। तो एक 70 साल की महिला जो वहाँ पर हिंदी पढ़ा रही है आज भी, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक तो आपके प्रधानमंत्री जी को मेरा धन्यवाद दीजिए। मैंने कहा मैं ज़रूर दूंगा, मगर क्यों, मतलब व्हाट इज़ द स्पेशल रीज़न? तो उन्होंने कहा कि वो आपके देश के अब तक के मैंने देखे हुए प्रधानमंत्रियों में से एकमात्र है जो यहाँ रूस में आकर भी हिंदी में बात करते हैं। उसका लाभ हमें ये हुआ कि मुझे रूसी से हिंदी अनुवाद करने की कला है, तो मुझे काम मिल गया। नहीं तो अब तक ये काम अंग्रेजी से रूसी वालों को जाता था, तो अभी मुझे कुछ न कुछ अहमियत मिली, मेरा कोई सम्मान होने लगा। मगर दूसरी बात जो उन्होंने कही वो और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा मगर मेरी एक कंप्लेंट ये है कि जो हिंदी मैं पढ़ाती हूँ वो आपके देश में बोली नहीं जाती। मैंने कहा ऐसे कैसे मोहतरमा, आप ऐसे कैसे कह रही है? तो बोले देखिए, दो अलग अलग कंसेप्ट्स है, एंड सिटिंग इन द कंपनी ऑफ ट्रेडर्स आई एम श्योर आई नीड नॉट एलैबोरेटली एक्सप्लेन यू, बट देर इज समथिंग कॉल्ड प्राइस राइज, and there is a different thing which is called as inflation, as you all know very well. And for both these terms there are parallels in Hindi. हिंदी में प्राइस राइज को हम कहते हैं महंगाई और इन्फ्लेशन को कहते हैं मुद्रास्फीति। तो वो महिला मुझे कह रही थी कि मैं अपने क्लास में तो ये फर्क स्पष्ट करती हूँ, मुद्रास्फीति बोलती हूँ, मगर मेरे बच्चे जब भारत में जाके मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो लोगों को पता ही नहीं है कि इस नाम का कोई शब्द है और इन्फ्लेशन के लिए मुद्रास्फीति के रूप में उसको पहचाना जाता है। So the point I'm trying to make is that let us be aware of our own strengths, the strengths of our great country, our culture, our traditions, our heritage, and only then perhaps we can make a mark globally. And I am happy that this particular segment of pharmacy, pharmaceutical products, manufacturing, it's something which has been very appropriately recognized by none other than the Prime Minister himself. प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि it is because of the efforts of the pharma industry today, India is identified as the pharmacy of the world. और इसलिए विश्व की औषध निर्माण प्रयोगशाला के बहुत अहम व्यक्तियों के साथ आज मुझे कुछ बातें रखने का अवसर मिल रहा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ये सब तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो 23-24 में लगभग 8.36% से बढ़ा है। सो वी आर डेफिनेटली मूविंग अहेड, मेकिंग ए मार्क। ये भी बात सही है, जो भी मैं मानता हूँ कि आप सब जानते ही है कि लगभग $100 बिलियन तक हम 2025 तक पहुँचेंगे। ये एक सरकारी आकलन है, एक अनुमान है, और सरकार अगर ये सोच रही है तो उसका आधार आप सब लोगों की मेहनत है, आपके परिश्रम है, आपकी ऊर्जा है। अभी चर्चा हुई कि गाम्बिया का एक प्रकरण जो मीडिया में बहुत उछाला भी गया था, और वो शायद हमें इस बात का भी स्मरण देता है कि भारत से जो भी एक्सपोर्ट होता है वो वैसे तो प्रोडक्ट होता है टेक्निकली स्पीकिंग, but I think we should be aware, and I'm sure you are conscious of the fact that we are not just exporting product, but we are exporting a little bit of the idea of India as well. And that is what people expect from us. I mean, from all other countries, they are kind of mere material exports.
But when Indians and we all from India try to export something, I think we have to be conscious that people are going to expect something more from us, not just products. फेयर ट्रेड एक्सपेक्ट करेंगे, अच्छी प्रैक्टिसेस एक्सपेक्ट करेंगे, एक ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आइडिया ऑफ इंडिया का अविभाज्य अंग है. आइडिया ऑफ इंडिया यानी कई बार हमारे कल्चर के बारे में चर्चा होती है, यहाँ पर भी उल्लेख आया. तो कल्चर केवल हमारा संगीत और हमारा नृत्य और हमारे व्यंजन, एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ imprint that Indian restaurant and hoteliers have left on the global community world over. कहीं भी जाइए आज भारतीय रेस्टोरेंट, और यहाँ तक, और हमने ICCR में इसको देखकर एक प्रयास शुरू किया है, क्योंकि आज हमारे अड़ोस पड़ोस वाले देश के लोग भी विदेश में जाकर इंडियन रेस्टोरेंट ऐसा बताते हैं. Although they are not Indians and they don't have the ability to run an Indian restaurant, मगर वो अपने देश का नाम लगाएंगे तो कोई जाएगा नहीं, तो इंडियन रेस्टोरेंट बोलते हैं. That is how India has become a brand. तो उसको सुरक्षित रखना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा. इसलिए हमने ICCR में एक अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है, और जो अच्छे होटल्स बाहर एक बहुत अच्छे तरीके से भारतीय पदार्थों को एक दृष्टि से विश्व के मेनू कार्ड में समाहित करते हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. तो जैसे हमारे पदार्थों के बारे में है, वैसे ही मानता हूँ कि हमारी औषध निर्माण प्रक्रियाओं के बारे में भी है, हमारे फार्मेसी के बारे में भी है. और अच्छी बात है कि आज की जो सरकार है केंद्र में और राज्य में भी, ये ट्रेडर्स को वेल्थ क्रिएटर्स मानती हैं. हम ऐसा नहीं मानते कि ट्रेडर्स यानी पैसा बनाने वाले लोग हैं, मतलब अपने लिए पैसा बनाने वाले हैं. मैं मानता हूं कि आप देश की संपदा में अपना योगदान देने वाले एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटक है एक दृष्टि से. और ये भावना होने के कारण हमारे सारे आयात निर्यात वाणिज्यिक प्रक्रियाओं में, व्यापारी प्रक्रियाओं में, जैसे कि अभी कहा गया, हमारे कल्चर की भूमिका को भी हमने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट नीति आयोग के द्वारा हमने एक प्रयास किया था टू अंडरस्टैंड द प्राइमेसी ऑफ कल्चर. सी, कल्चरल रिलेशंस परहैप्स आर नाउ एक्वायरिंग ग्रेटर इम्पोर्टेंस, बिकॉज ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हम देख रहे हैं, चाहे रूस और यूक्रेन के बीच हो, चाहे मिडल ईस्ट में जो हो रहा है वो हो, इनके पीछे क्या है, वाई पीपल आर फाइटिंग. तो इसके पीछे एक वियर्ड आइडिया है सुप्रीमसी की, कि हम आपसे श्रेष्ठ है. और हमारे देश की विरासत तो हमें ये बताती है कि हम तो इसमें यकीन करते हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. दिस इज द फंडामेंटल आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया. If Indian democracy is successful as against several other democracies, and for 75 plus years, not a small success, but the success has to be credited to our spiritual democracy. हमने कभी ये नहीं माना कि इसकी मोनोपोली रहेगी, माय वे और हाईवे, ये हमने कभी नहीं माना. हमने हमेशा ये माना कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. और इसलिए ये अगर हमारा दृष्टिकोण है, इस पद्धति से अगर हम सोच रहे हैं, तो आज के विभिन्न संघर्षों में एक दृष्टि से मैं मानता हूं कि तरह तरह की हानि का सामना करने वाले विश्व समुदाय को भारत से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारत में हूं और थोड़ा एक जिंगोइज्म रहता है हमारे अंदर, तो थोड़ा भारत की वाहवाही करूं, इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ. इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा यूक्रेन के वॉर के समय कि दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर, एंड एवरीबडी स्टार्टेड रिपीटिंग द सेम. यस, इट वाज मिस्टर मोदी इज सेइंग इज करेक्ट, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर. अभी ये बड़ा सुलझा हुआ एक स्टेटमेंट था, इसमें किसी को नसीहत नहीं थी, मगर सभी को कुछ एक सलाह थी एक दृष्टि से. तो उसको कोई विरोध भी नहीं कर पाया, न रूस को कोई आपत्ति थी, न यूक्रेन को कोई आपत्ति थी.
तो यही होता है। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत से जो उम्मीदें हैं विश्व समुदाय को, उनको पूरा करना अकेले सरकार का काम नहीं हो सकता। गवर्नमेंट perhaps is not adequately strengthened today and perhaps need not be to rise to the occasion and rise to the expectations of the global community from India. अगर इंडिया की एक अहमियत, भारत एक विश्व मित्र बन रहा है, तो भारतीय लोगों के कारण बन रहा है। भारत सरकार के कारण ही केवल बन पाएगा, जरूरी नहीं। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा बोलते हैं कि विकास जैसी संकल्पना ये केवल सरकार के द्वारा जमीन पर उतारी जाएगी, ऐसा मानना गलत है। विकास एक जन आंदोलन होना चाहिए, उन्होंने बार बार कहा है। और इसलिए सहभागिता, पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप, these have become the key words today. And therefore, as somebody who is associated with the government, I must say over here that this government considers all the traders as wealth creators and partners in the progress of the country. Now, insofar as the close connection between trade, exports, imports, industry, or even economy in the larger context and culture is concerned, there are many things perhaps we need to think about. For example, भारत की जो भी एक पहचान है, उसका सीधा संबंध यहाँ की जीवन दृष्टि से है, जिसको हम वर्ल्ड व्यू बोलते हैं। और जीवन दृष्टि में जीवन शैली भी आती है, द वे वी लिव। देखिए, देर आर ideologies that have been talking about conquest over nature, प्रकृति को परास्त करना, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना। हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा कॉन्फ्लुएंस विथ मदर नेचर। अभी भी हमारे घरों में पुरखे, हमारे बुजुर्ग आज भी अपना दिन प्रारंभ करते समय एक प्रार्थना कहते हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स मदर अर्थ। क्यों? क्योंकि हम कॉन्क्वेस्ट की बात नहीं करते, हम कॉन्फ्लुएंस की बात करते हैं। और ये जो एक बेसिक हमारा दृष्टिकोण है, मैं मानता हूं कि आज सस्टेनेबिलिटी की इतनी चर्चा हो रही है पूरे विश्व भर में। हमें तो सस्टेनेबिलिटी घुटी में पढ़ाई गई थी, मतलब बताई गई थी कि दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द फोर्सेस ऑफ नेचर। और इसलिए इन्हीं को समझते हुए सरकार जो भी कर रही है, हमने जो भी करना चाहिए, इनका अगर एक समन्वय स्थापित होता है। See, it is not for no reason that the Prime Minister mooted the idea of International Year of Millets couple of years before. Why? क्योंकि प्रकृति का जो वातावरणीय परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात जो आ रही है, उसके कारण आज की ये स्थिति है कि जो 4 महीने में बारिश होनी चाहिए वो 4 घंटे में हो रही है। एंड यू एंड मी परहैप्स कैन नॉट प्रिवेंट इट एट दिस जंक्चर। तो हमें चाहिए कि ऐसे उपाय ढूंढे कि हमारी फसलें सुरक्षित रहे। और मिलेट एक ऐसी फसलों का समुदाय है कि जो 45 दिनों में तैयार हो जाता है, अनलाइक व्हीट एंड राइस एंड अदर। तो मिलेट बड़ा न्यूट्रिशियस अन्न है। तो आज जब फूड सिक्योरिटी की बात आ रही है तो उसमें मिलेट की अपनी एक भूमिका है। वही बात योग की है, जिस पद्धति से इंटरनेशनल ईयर ऑफ योग स्थापित हुआ और जिस पद्धति से आज देश के कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम हो रहे। एंड द सेम थिंग इज ट्रू अबाउट आवर डाइटरी हैबिट्स ऑल्सो। देयर वॉज ए वेरी वेल नोन एग्रीकल्चरिस्ट इन महाराष्ट्र, हिज नेम वॉज विलासराव साळुंखे, and he had talked about the justiciable usage of agricultural water resources. कौन से फसल को कितना पानी, जैसे गन्ने की फसल बहुत पानी खा जाती है और इतनी शक्कर हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने अभियान छेड़ा था और कई शुगर बरोन्स उनके लिए ये बड़ा मतलब दिक्कत का विषय भी बना। But Mr. Salunke once told me that
apple a day keeps the doctor away is not true in India, certainly not true in Mumbai. Apple a day keeps the doctor away वहां का है भाई, जहां एप्पल ग्रो होते हैं। हिमाचल में जरूर करिए आप, लंदन में जरूर करिए, यहां अगर आप एप्पल खाओगे डॉक्टर विल विजिट एवरी डे, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और आज भी मतलब पूरा जो एक यूरोसेंट्रिक थिंकिंग विश्व भर में छाया हुआ है, और दुर्भाग्यवश हमारी किताबों में से भी वही हमारे पास पहुंचाया गया अब तक। अभी तो परिवर्तन हो रहा है। ये हमारे सांसद है, मित्र है, तो वो एक बार मुझे कह रहे थे, इज फ्रॉम कर्नाटक। वो कर्नाटक में कहीं गए थे, तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु के, तो किसी विलेज में गए थे, तो बोले बहुत कड़ी धूप थी, तो हम किसी घर में किसान के पानी पीने के लिए गए। तो किसान का पोता आया था। द किसान इज अबाउट 70 year old maybe, and his grandchild had just returned from the school, and the grandfather was having some quarrel kind of a thing, some heated exchange with his grandchild. So this member of parliament, simply to start the conversation, just asked him कि दादाजी आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं, ये बेटा बेचारा अभी तो मतलब स्कूल से आया है, क्या हो गया? तो किसान ने बोला कि मैं क्या बताऊं आपको, ये अभी अभी आया है, हर रोज यही आता है, हमारा झगड़ा होता है, यहाँ अगस्त महीना चल रहा है, पानी का एक बूंद नहीं है, बारिश नहीं हुई है, वी आर फेसिंग ए सीवियर famine kind of a situation, and this boy every time comes home and tells me rain go away, rain go away. ये क्या चल रहा है? अब ये कविता है कहीं की, वो हमारे पाठ्य पुस्तकों में होने का कोई तात्पर्य नहीं है वैसे देखा जाए तो। Same is true about the medicinal systems as well. In fact, there was a bill on Ayurveda in Parliament, and I had spoken about it. And my first suggestion to the government was that please stop referring to the allopathy as modern medicine. Because the moment you qualify it as modern medicine, Ayurveda becomes non-modern. Why should it be so? There is some modern research happening in Ayurveda, Siddha, and many traditional medicinal systems as well. And we need to recognize them. In India, if we don't give respect, due respect, विश्व समुदाय क्यों रिस्पेक्ट देगा हमको? और हो रहा है। अभी मुझे बता रहे थे आप ही के पदाधिकारी कि विश्व भर में आयुर्वेदिक उत्पादों को काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि वो एक वे ऑफ लाइफ की ओर ले जाने वाला पूरा विषय है। तो अभी मैं जर्मनी गया था, तो बर्लिन में एक आयुर्वेद का हॉस्पिटल में एक आयुर्वेद यूनिट चला है। हाँ बिल्कुल, आपने भी देखा होगा। और वहाँ तो मुझे अपने आयुर्वेद के यहाँ जो दिखाई नहीं देता वो वहाँ दिखाई दिया, विच इज़ काइंड ऑफ ए म्यूजिक थेरेपी। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने मुझे कहा कि आप भी अनुभव करिए। तो बेड पर लेटने के बाद नीचे एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, और उससे वो तार छेड़कर आपको एक अलग फीलिंग दे देते हैं, विच इज़ लीडिंग टू सम काइंड ऑफ वेलनेस, इमोशनल वेलनेस एज वेल। तो ये हमारी जो संपदा है, दिस इज आवर सॉफ्ट पावर, एंड दीज आर द डेज ऑफ सॉफ्ट पावर. People know, global leaders are conscious of the fact that it is not easy to acquire new land mass. So let us acquire mind spaces. और वो माइंड स्पेस एक्वायर करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बशर्ते हम उसको पहचानें और हम विश्व समुदाय को उसके बारे में बताएं. People are keen to understand from India. People are enthusiastic to learn from India. वो एक शेर है ना कि जमाना बड़े रुचि से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते. ऐसी अवस्था अगर नहीं आनी है तो हमें जरूरी है कि हम अपनी संपदा के बारे में एक अच्छा आकलन अपने अंदर बनाएं, एक आत्मविश्वास जगाएं और विश्व समुदाय को ये कहने की स्थिति में हम आए कि हम है ना. And again, this has been envisioned by many of our stalwarts, like for example Yogi Aurobindo.
Aurobindo had said very famously that India perhaps is a country or a civilizational society where you name a problem and that is present in India. कोई भी सामाजिक समस्या हो, अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई भी समस्या हो, वो भारत में है. And Yogi Aurobindo adds to that, मगर India is also a country where there are solutions. तो ये हमारे पास है. विश्व समुदाय ये मानता है कि हमारे पास ये सॉल्यूशंस है. हमें उसका आकलन होना चाहिए और हमने उस दिशा में सोचकर उसको देने की एक अपनी मानसिकता बनानी चाहिए. बहुत प्रोफेशनल पद्धति से बनानी चाहिए. यह ऐसा नहीं है कि हम और इसीलिए द गवर्नमेंट लीडर्स डू नॉट टॉक अबाउट विश्व गुरु, वी टॉक अबाउट विश्व मित्र, बिकॉज विश्व गुरु हैज ए डिफरेंट सेंस. मगर विश्व मित्र में, और जो हमने साबित कर दिया जब कोविड-19 का पूरा चुनौती भरा काल था, और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण, एंड दैट इज द लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक, इज द रिलेशनशिप बिल्डिंग. आफ्टर ऑल, सच ऑर्गेनाइजेशंस मेक ए मार्क बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ रिलेशंस, interpersonal relations, mutuality. And the government also believes in building bridges and evolving relationships, which is so very critical these days. And let me share with you a kissa, an experience of an Indian teacher before I conclude. एक भारत के हमारे मित्र शिक्षक बनकर यूएस गए, तो 10-15 साल वहाँ पर पढ़ाया उन्होंने. तो मैं एक बार मिला तो मैंने कहा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग इन इंडिया एंड टीचिंग देयर इन यूएस. तो उन्होंने कहा कुछ अच्छी बातें यहाँ पर भी हैं विच वी नीड टू एम्यूलेट, बट देयर आर मेनी गुड थिंग्स इन आवर कल्चर विच वी नीड टू प्रैक्टिस ओवर हियर एज वेल. एंड द सेंटर पीस ऑफ इंडियन फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन इज अवर टीचर टॉट रिलेशनशिप, गुरु शिष्य. तो उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया कि उनके क्लास में वो कुछ 12वीं के क्लास को पढ़ाते थे, तो 15 समथिंग ऐसा कोई एक बच्चा जो अदरवाइज बड़ा होनहार, टैलेंटेड, वो उनके क्लास में पहले 2-3 कतारों में बैठता था. तो एक बार उनके ध्यान में आया कि ये बच्चा क्लास में सो रहा है, तो उन्होंने जाकर उसको थोड़ा हिला दिया. तो वो भी थोड़ा शाय भी हुआ, थोड़ा अशेम्ड भी महसूस किया. बट इट कंटिन्यूड फॉर 2-3 days. On 4th day, when a little sternly our Indian teacher tried to wake him up at 11:30 something, the boy got up and he said, again very bluntly, "Sir, teaching is your job. Whether to listen to your lecture or not is my liberty." अभी ऐसा जवाब सुनने का हमारे भारतीय शिक्षक को तो आदत ही नहीं. So he was kind of flummoxed. But then he could not argue, because in a country like US, where individuality, privacy, private space, liberty, all these things are supremely considered as important. तो उसने कोई बहस नहीं बढ़ाई. But the teacher was very keen to know as to why this boy is sleeping, is dozing off at 11 o'clock in the morning and practically for over a week. तो उसने उस छात्र के साथ संवाद करने की कोशिश की. The boy was unyielding. मगर ये इतना पीछे पड़ा तो एक बार उसने कहा कि चलो we will have some conversation over a cup of tea. तो कॉन्वर्सेशन करते समय बच्चे ने कहा कि सर, I know you are keen to know why I am dozing off in the class, that too in the morning. But let me tell you that there is some disturbance in my family. मेरी माता ने अब एक नए पिता घर में लाए हैं. तो ये जो नए पिता है वो नहीं चाहते कि मैं इस घर का हिस्सा रहूं. So he is keen on pressurizing me to find a new accommodation somewhere, either in a hostel or in a shared apartment or wherever. तो हमारा बहुत झगड़ा होता है. Finally I have given up and I have told him that give me 6 months, I'll try to accumulate some funds and then I'll move. But then how do I do that? So I have started working in a McDonald's shop between 10 in the night up to 5 in the morning. मैं घर आता हूँ तब 6 बज जाते, 2-3 घंटे की नींद हो जाती है, फिर 9 बजे उठकर नहा धोकर मैं क्लास में आता हूँ. बट इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर मी टू रिमेन अवेक एट 11 o'clock, विच इज़ व्हाई आई एम डोजिंग ऑफ. एंड लास्टली उसने कहा, बट सर, सिंस यू आर फ्रॉम इंडिया, you were wanting to know to go to the root cause of why I am sleeping,
and you were curious because you were concerned, you were caring about me. No American teacher even thought of asking me why I am dozing off. This is the strength of relationship which we all have recognized, and I'm sure that itself is going to take us ahead globally. Thank you very much.